नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। विद कीपिंग दिस थीम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Before starting today's video, I would like to give you a quick recap of whatever we saw in the previous video. So here is whatever we saw in the previous video. I told you that there is something called five aggregates of formation. ये पांच चीजें हैं जिनसे हम बने हैं. Our entire existence is made up from these five things. And the problem, I told you that these five things are not constant, they are constantly in flux. ये constantly change होते रहते हैं. In fact, that's what Buddha said, that change is the only constant thing in this world. But we want things to be permanent, we want things to be constant, and that's why it becomes the one of the causes of the suffering, जिसे दुखा बोला गया है. So if you haven't watched the previous video, I highly recommend you to go through that one first, and then if you go through this video, then it will make a lot sense to you. So let's start today's video. That is nothing but it is on the second noble truth, जिसे cause of dukha बोला जाता है. First noble truth we saw, that is nothing but the noble truth of suffering, जिसे बोला गया है, that is dukha. And I emphasized a lot on the meaning of the dukha because both translation and the interpretation that is present in a mainstream, mainstream society, that is completely wrong. जो हमें दुखा का मीनिंग लगता है वो नहीं है जो एक्चुअली बुद्धा ने दुखा का मीनिंग बोला था. सो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग अ लॉट, आई एम लेबरिंग ऑन द सेम पॉइंट, दैट इज दुखा इज नथिंग बट इम्परफेक्शन. इम्परफेक्शन का मतलब होता है दैट इज डिस्टॉर्शन इन थिंकिंग और परसेप्शन. हमें रियलिटी वैसे नहीं देखी, हमारा माइंड रियलिटी हमें वैसे नहीं दिखाता है जैसे रियलिटी एक्चुअली होती है. तो माइंड हमें रियलिटी को, माइंड बेंड्स द रियलिटी. एंड बुद्धा ने कहा था कि वी सी द थिंग्स अपवर्ड डाउन. so that is nothing but the imperfection in seeing the truth. Impermanence is, that is, which is nothing, which is not long lasting. जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है उसे इम्परमानेंस बोलते हैं. विच इज इफिमिरल, विच इज ट्रांजिएंट, उसे इम्परमानेंस बोला जाता है. विच इज नॉट परमानेंट, दैट इज इम्परमानेंस. एंड थर्ड इज नथिंग बट अनसेटिस्फैक्टरीनेस. so when Buddha said dukkha, what he meant दुखा विद दिस थ्री मीनिंग्स. तो दुखा का तीन मीनिंग बुद्धा ने बताए थे जब उन्होंने कहा था कि लाइफ इज फुल ऑफ दुखा. he said that there is a imperfection in the life, there is impermanence in the life, and there is unsatisfactoriness in the life. again if I want to फिर भी मैं इसको, if I want to elaborate and make it as easy as ABCD, I will try to make it easy. Before that I want to ask you some question. I want you to take a pause and think over this question, ponder a little bit, and you will get the answer, and then you can easily understand the meaning of the dukkha. Are you expecting reality to be different? क्या आपके लाइफ में अभी जो हो रहा है, वॉट एवर एक्सपीरियंस यू आर हैविंग at this point of time when you are watching this video, are you expecting it to be in a different way? Second question, is there a gap between the way you want things to be and the way things are? मतलब क्या आप चीज़ें जैसी जैसे आप चाहते हो और जैसी चीज़ें हो रही हैं, इनके बीच में गैप है क्या? Same question, I am asking the same question, but framing it in a different way. Are you waiting for something to happen? क्या आप constantly wait कर रहे हो कुछ तो भी अच्छा हो जाए आपके लाइफ में? इन सभी का आंसर अगर आप देखोगे, if you take a pause and think for a little bit time, and if you ponder, you will get that इसका आंसर हमेशा यस ही होता है. We always feel that कि there will be always a gap between what the way we want things to be and the way reality is. मतलब यहाँ पे जो गैप है, हम जो चाहत रियलिटी जैसी होती है हम वैसे उसको एक्सेप्ट नहीं करते. वी वांट टू बेंड द रियलिटी द वे वी वांट, हमारी इच्छाओं के अनुसार हम उसे रियलिटी को बेंड करना चाहते हैं. तो ये जो गैप है, दैट आप जो चाहते हो और रियलिटी, that is nothing but the dukkha. I hope you are understanding what I am trying to convey. So when Buddha said life is full of dukkha, so this is what he meant, that is unsatisfactoriness.
So this is the meaning I tried to explain in layman's language. I hope you got it. Now let's see what is the noble second noble truth. So second noble truth is nothing but that cause of dukkha we saw is nothing but craving. क्रेविंग को आप रफली थर्स्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, सॉरी. सो दिस इज नथिंग बट द क्रेविंग. क्रेविंग एक नॉर्मल आप मीनिंग जानना चाहो, द सेंस ऑफ क्लिंगिंग, किसी चीज को अटैच होकर रहना या वही चीज बार बार होते रहना. दिस इज अगर हमें लगता है तो दैट इज नथिंग बट द क्रेविंग. One question always used to linger in my mind that if Buddha said that craving is a cause of dukkha, then इसका मतलब हर टाइप की craving must lead to dukkha. ये हमेशा मुझे लगता था. But when I got into the depth, when I drilled down, I understood that there are different types of craving. There are something called good cravings. For example, practicing dhamma. If you feel that there is, if you are getting a craving to practice Buddha's teaching, that is a good craving. Getting up early in the morning, it's a good craving. So there is the getting up early in the morning, hitting the gym, doing the exercise. So these are the good cravings. Then there is something called unwholesome craving. These are bad cravings भी आप बोल सकते हो. That is seeking power, status, pleasure for oneself, running after money, running a race जिसका कोई end ही नहीं है. This is unwholesome craving. And third is nothing but neutral cravings. For example, if you are feeling to go walk, if you are tired, you want to sleep, these are the nothing but a neutral craving. When Buddha said, I want you to listen very carefully what I am trying to convey over here. When Buddha said that craving is a cause of dukkha, he meant only, he is talking about only unwholesome craving. He is not talking about the good cravings or the neutral craving. So I hope you are understood it. So dukkha, craving is the cause of dukkha, and वो craving कौन से है? Those are the bad craving, that is unwholesome craving जिसे बोला जाता है. So let's see the causal role of craving. कि actually I will try to explain it with the example कि कैसे craving leads to dukkha, craving से कैसे थर्स्ट से कैसे हमें दुखा होता है. We actually become unsatisfied in our life. The simple example I will try to explain it. For instance, आपके पास कोई मोबाइल है and you met one of your friends and you saw iPhone with that friend. मतलब आपके पास कोई मोबाइल था, आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल है, बट आप आपके दोस्त से मिले और आपके दोस्त के पास आपने देखा कि आईफोन है. द मोमेंट यू सी द आईफोन, यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग द थिंग. आप आपका एंड्रॉयड फ़ोन आपके दोस्त के आईफोन से कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, एंड जैसे ही कंपैरिजन होगा इट विल गिव राइज टू द क्रेविंग. क्रेविंग दैट आई ऑल्सो वॉन्ट द आईफोन, मुझे भी आईफोन चाहिए, ये क्रेविंग आप में आने लगेगा. एंड देर विल बी द फीलिंग दैट यू लैक समथिंग, दैट इज यार मुझे मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है. एंड दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली अनकॉन्शियस. आपको पता भी नहीं होता है कि ये प्रोसेस हो रही है. तो until and unless you have a trained mind, until and unless you are mindful, तब तक आपको पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है क्या. तो जैसे ही क्रेविंग आता है, यू फील, इससे आपको कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड फील होता है कि मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है, उसके पास कैसे क्या है. तो दिस इज नथिंग बट द सफरिंग ऑफ लैक बोला जाता है. जिससे क्या होता है, यू ट्राई, जैसे ही क्रेविंग आता है यू स्टार्ट सफरिंग. सफरिंग इज नथिंग बट इसको आप अनसेटिस्फैक्शन से लोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो इट दिस गिव्स राइज टू द एब्सेंस ऑफ समथिंग डिजायर्ड नीडिंग. आपके पास आईफोन नहीं है तो यू आर सफरिंग. सो दैट इज अ थिंग. तो क्रेविंग, एक नॉर्मल क्रेविंग आ गया देख के एंड यू स्टार्ट सफरिंग. ओके, अब आप कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू ट्राई टू पुल अप मनी, यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट मनी सो दैट यू कैन बाय आईफोन. आपने पूरी जान लगा दी, पूरे काम किया, इधर से लोन लिया, उधर से लोन लिया. एंड when you are pulling the money, when you are collecting the money so that you can buy iPhone, throughout that process you are also suffering, you are unsatisfied. आप satisfied नहीं हो क्योंकि आप continuously आप you are thinking about the iPhone constantly. So this is nothing but the suffering of striving or seeking. तो उसके बाद फाइनली यू गॉट आईफोन. जैसे आपको आईफोन मिल जाता है, आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज विच आई विल टॉक इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स, जिसे डोपामिन बोला जाता है. नाउ जैसे ही वो आईफोन आपके पास आ जाता है, फिर आपको देर इज समथिंग कॉल्ड सफरिंग ऑफ प्रोटेक्शन. मतलब जैसे ही आपको आईफोन मिल जाता है ना, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कीप इट सेफ फ्रॉम द थीप्स.
आपको वो कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं चोर के लेके ना, कोई चोर ना ले, हर चीज का आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज स्टिल यू आर सफरिंग इन दिस स्टेज, ऑल्सो यू आर अनसेटिस्फाइड। भले जो प्लेजर मिलता है वो बहुत कम समय के लिए मिलता है, यहाँ पे भी आप अनसेटिस्फाइड होते हो। एंड गॉड फॉरबिडन, ऐसा कुछ ना हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका आईफोन अगर कहीं गुम गया या कहीं मिस हो गया तो यू देर इज नो डाउट एट ऑल यू विल सफर, जिसे बोला गया है सफरिंग ऑफ डेप्रिवेशन। तो इफ यू take a pause and think logically, if you put your thinking cap, you will understand that जब आपके पास आईफोन नहीं था तभी भी आप सफर कर रहे थे, जब आपके पास आईफोन आया तभी भी आप सफर कर रहे हो, एंड नीडलेस टू से जब आईफोन गया तो आप सफर करोगे ही करोगे। तो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग व्हेन बुद्धा सेड दिस इज द कॉजल रोल ऑफ क्रेविंग। एक नॉर्मल क्रेविंग से कैसे आपका एक साइकिल बन जाता है सफरिंग का, दिस इज व्हाट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड इन केस अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन भले ही है, बट इन केस मार्केट में अगर नया आईफोन लॉन्च हो गया, फॉर एग्जांपल 16 अभी चल रहा है, तो मार्केट में अगर 16 आईफोन 16 लॉन्च हो गया और आपके दोस्त के हाथ में आपने देखा कि आईफोन 16 है, अब जो आपके पास जो आईफोन है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो पहले अच्छा लगता था, अगेन यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग द थिंग, वहां पे क्रेविंग आएगी और फिर से ये साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा। सो दिस इज द कॉजल रोल ऑफ क्रेविंग। I tried to explain it in a layman's language and I hope you understood it. If you haven't understood it, I highly recommend you to rewind the video and watch it again. You will understand it. Now, there are four forms of craving. When Buddha said there are four forms of craving, it's very easy to understand. First is sensual craving. In fact, craving is not the chief cause of dukkha. When we say that craving is the cause of dukkha, सिर्फ क्रेविंग ही मेन रीजन नहीं है दुखा का, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स। इनफैक्ट क्रेविंग जो हमें आता है इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सेंसेस। इनफैक्ट अगर आप उस आईफोन को देखोगे ही नहीं, आपका जो विजुअल सेंस है, विजुअल कॉन्शियसनेस है, अगर आप देखोगे ही नहीं तो क्रेविंग कहाँ से आएगा आपको। तो क्रेविंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेंसेस। तो क्रेविंग इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंसेस, but craving is easily to understand. It is from the mental processes, craving dominantly आप पहचान सकते हो कि this is what is giving rise to the dukha. So that's why actually it is a combination of the thing, but yeah, chief reason आप बोल सकते हो सब में क्या है, craving है। So there is a something called sensual craving. These are the cravings you get it from five senses. मोस्ट ऑफ टाइम सोसाइटी में बोला जाता है कि वी बिलीव दैट देयर आर फाइव सेंसेस साइंस के हिसाब से, बट इन बुद्धिज्म व्हेन बुद्धा सेड देयर इज अ सिक्स सेंस दैट इज नथिंग बट योर माइंड। तो जो भी आपको क्रेविंग्स आती है, आपके साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच, या फिर आइडियाज या थॉट्स, थॉट्स इज नाइटिंग ए डे ड्रीमिंग जो होता है कि लोग दिन में ही सपना देखना चालू कर देते हैं, जैसे वूल गैदरिंग भी बोला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कि फैंटेसी जो होता है, फैंटेस्टिक वर्ल्ड, लाला लैंड जिसे बोला जाता है। So this is nothing but the sensual craving. Next is craving for existence. Craving for existence, again, we need to understand it at a two levels. First is at the psychological level, and second is at the meta psychological level. It's easy to understand at the psychological level, and it's quite logical. No one wants to die. Okay, we feel that uh, everyone wants to be immortal. सबको क्या बनना है, अमर बनना है। सबको ऐसा लगता है कि आई शुड लिव फॉर एवर द वे आई एम लिविंग नाउ। हमें लगता है कि जो जिंदगी हम जी रहे हमेशा ऐसे ही चलना चाहिए। नो वन वांट्स टू डाई। so this is the thing that is a craving for existence, हम ऐसे ही जीना चाहते हैं। this is nothing but the craving for existence. This is at the psychological level, but at the meta psychological level if you understand it, इट इज अ वे मोर देन दिस। अगर बहुत डीपर लेवल पे हमने देखा कि क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस कैसे देखता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ का हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। एंड नाउ आई साइंटिफिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव इट, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आई ऑल्सो, ये खुद मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आई विल नॉट टॉक मोर अबाउट इट। तो थोड़ा सा, बट आई कैन गिव यू द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग।
a conceptual understanding I can give. So I told you that we are made up from these five aggregates. ये पांच चीजों से हम बने हैं. Now what happens when consciousness जो है, you can see over here, this I made a diagram. So consciousness, it takes a support of the body. ये consciousness जो है, जो body का support लेके क्या करती है, it comes into action. तो कॉन्शियसनेस को एक्शन में आने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बॉडी की, और बॉडी की इज नथिंग बट इन सारे चार चीजों की. अब when there is a no life in the body, for example there is a person and he died, there is no life in the body, so what we feel normally, when there is no life in the body, there is also no consciousness also came to an end. but actually ऐसा नहीं होता है, that's what Buddha said. तो consciousness क्या होता है, जैसे if there is no life in the body but consciousness still lives there. Consciousness is the force, it is a force that is present because it's energy, and energy हमेशा present रहती है, that's what Buddha said. तो अब consciousness क्या करता है, it tries to latch on onto the another body, क्योंकि in order to come into action, consciousness needs the support of the body. I hope you are understanding. Consciousness को क्या चाहिए, body चाहिए, so that it can come into the action, it can manifest. तो ये consciousness जो है, ये क्या करता है, it try to search another body and it another form of anything, another ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म की बॉडी चाहिए उसे. एंड जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाता है कॉन्शियसनेस, दैट दिस इज नथिंग बट, इसे बोला गया है रीबर्थ. and that organism can be animal, it can be anything, trust, it can be animal, it can be human being, it can be anything, just a living being. and this process is called as a rebirth. now the important thing कि craving for existence, अब इसमें craving का रोल क्या है. अब ये जो कॉन्शियसनेस मैंने बोला था, ये बॉडी को खोज रही है. अब उसको पुश कौन करता है, there is a craving is the driving force which pushes consciousness to latch onto the another body. तो इसके पीछे जो फोर्स है वो कौन है, क्रेविंग क्या करता है, कॉन्शियसनेस को मजबूर कर देता है कि उसे कहीं ना कहीं किसी बॉडी में जाना है. दैट इज नथिंग बट द क्रेविंग ऑफ एग्जिस्टेंस बोला गया है. इट इज एट द मेटा साइकोलॉजिकल लेवल एंड इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई नो दैट. साइंटिफिकली इट इज, एंड बुद्धा सेड दैट ये जो प्रोसेस चल रहा है, इन एवरी बर्थ, इन एवरी लाइफ, we suffer from these three things: birth, death, in between is there is sickness or old age, you can say. तो फॉर एग्जाम्पल हम ये जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पे देर इज बुद्धा सेड दैट बर्थ इज सफरिंग, सिकनेस इज द सफरिंग, ओल्ड एज इज सफरिंग, डेथ इज सफरिंग. अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही हम इफ यू आर नो मोर, इफ यू किक अ बकेट, इफ यू जॉइन द मेजोरिटी, अगर हम मर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इस पेन से, ये जो सफरिंग है, इनसे हम छुटकारा पा लेंगे. तो ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली वी आर ट्रैप्ड इन अ वेब, हम एक जाल में फंसे हुए हैं. एंड उस जाल, वो जो प्रोसेस चल रहा है फंक्शनिंग, जो जिसे संखारा बोला गया है, दिस प्रोसेस जो चल रहा है, दिस इज दैट इज नथिंग बट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो प्रोसेस, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. बुद्धा सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट इट आउट कि एग्जैक्टली यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुआ है. एंड हर एक जन्म में, आप बोल सकते हर एक जन्म में, हम कौन से भी जन्म में आ जाए, हर एक जन्म में वी सफर फ्रॉम दिस थ्री थिंग्स. तो एक्चुअली वी आर ट्रैप्ड इन अ वेव, हम ऐसे वेव में फंस चुके हैं, हम ऐसे जाल में फंसे हैं. हम किसी भी जन्म में आ जाए, हमें इन चीज़ों से सफ़र होना ही पड़ेगा. एंड इट्स, और हम हर 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 जन्म में हम इन बर्थ, सिकनेस एंड डेथ से सफ़र करते हैं. व्हेन बुद्धा सेड दैट निर्वाणा इज नथिंग बट, हर जैसे ही ये साइकिल ब्रेक हो जाता है, दैट इज साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ ऑफ डेथ, ये जैसे ब्रेक हो जाता है, वी गेट लिबरेशन फ्रॉम दिस सफरिंग, बर्थ, डेथ एंड सिकनेस, एंड दैट इज द अल्टीमेट डिलीवरेंस, जिसे निर्वाणा बोला जाता है. आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुझे का समझने भी काफ़ी टाइम लगा था. इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, योर माइंड रेजिस्ट दिस थिंग्स अ लॉट. But yeah, this is the concept. It's difficult to, it cannot be proven by the science, but this is what the Buddha said, and this is what the craving for existence is.
Now next is craving for annihilation. It's quite easy. The most people, if, for example, if there is someone and he is suffering a lot in his or her life, so what that person feel, if he dies, there will be end of the suffering. So this is what someone feels. तो जैसे अगर हम मर जाते हैं तो सब कुछ एंड हो जाएगा सफरिंग. दैट इज एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. डजंट मैटर व्हेन यू डाई और समथिंग, योर consciousness latches onto the another body, and I told you we are trapped in a wave. हम एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं. डजंट मैटर आप कौन से जन्म में आते हो, आपको वो फेस करना ही पड़ेगा, बर्थ, सिकनेस एंड डेथ. तो मोस्ट एविडेंट फॉर्म क्या है क्रेविंग फॉर एनालाइजेशन? इट इज नथिंग बट सुसाइड्स. तो पीपल फील, दीज आर द पीपल बेसिकली. क्रेविंग ऑफ एनालाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार मर जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द केस इज. So this is nothing but craving for annihilation. Last is nothing but craving for ideas and belief, and it is very detrimental to human existence. I told you that most of the time there is a distortion in our thinking. We want permanent things. हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही है, अगर कोई, if we are happy, if we are aesthetic, we are exploding with happiness and ecstasy, तो we feel that कि ये जो लम्हा है ऐसे ही जिंदगी में रहना चाहिए. दिस मूवमेंट शुड लास्ट टिल इटर्निटी. बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. वी फील दैट, आई टोल्ड नो, मैं बच्चों को हमेशा बोलते रहता हूँ, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टनटी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट अनसर्टनटी. अगर आप अनसर्टनटी को एक्सेप्ट, अगर आप ऐसा करते हो कि चीज़ें आपके लाइफ में हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वो कभी भी नहीं होगा. यू विल सफ़र अ लॉट. तो इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो आपको फल मिलना ही चाहिए. इफ़ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन अ टास्क, यू मस्ट गेट रिवॉर्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, बिकॉज लाइफ इज़ कम्प्लीटली अनफेयर. तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा कैसा ना, इट इज़ इनजस्टिस, ऐसा वगैरह, डजेंट मैटर वॉट यू थिंक, यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. अगर आपने ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं किया, सो एक्चुअली इफ यू आर हेल बेंट ऑन पर्टिकुलर आइडियाज और थॉट्स, दैट इज नथिंग बट द क्रेविंग फॉर आइडियाज. फॉर एग्जाम्पल कोई आइडियोलॉजी है जिससे आप बहुत ज़्यादा रिजिड आपका थिंकिंग है, दैट इज नथिंग बट क्रेविंग. कोई इसके अगेंस्ट में जाता है तो यू स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट दैट. so you need to be flexible regarding that. So this is nothing but the craving for ideas and ideals. So that's it for today, guys. If you like this video, make sure that you like it, share it and subscribe it. You can connect with me through the Instagram Siddhant Life School. This is my Instagram channel. Thank you, guys. Thank you for watching this video. Have a great evening ahead.